नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके लिए इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज हम जानें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंपटीशन से रिलेटेड क्या प्रोविज़न्स हैं। Income from house property is mentioned in section 22 to 27. Income is taxable under the head income from house property if the following three conditions are satisfied. Number 1, the property should consist of any buildings or lands apartment thereto. Number 2, the assessee should be owner of the property. And third, the property should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax section 22। अर्थात हमारे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी या बिल्डिंग भूमि से लगी हुई होना चाहिए और वह ओनर जो असेसी है वो असेसी ही उसका ओनर होना चाहिए। प्रॉपर्टी ओनर के किसी बिजनेस या पेशे में उपयोग ना हो रही हो। Property is a wide term, but here under section 22 it is used for limited purpose. The property consisting of any buildings or land, apartment. When property is not chargeable to tax, so conditions are: in the following cases, rental income is not charged to tax. Income from house property, section 2 1AC, read with section 10(1). So first is farmhouse, and second, annual value of any one palace of an ex-ruler, section 10 19A. Number third, property income of local authority. So लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, सेक्शन 10 20। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 10 21। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, सेक्शन 10 23C। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन 10 24। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, सेक्शन 11। These all type of property income are not charged to tax under house property. Some important terms. So see here, those terms are useful for computation of house property. Number 1, municipal value determined by the local authority for the charging house tax is known as municipal value. Fair rent. Rent is similar properties in the same locality. Standard rent is the maximum rent which a person can legally recover from his tenant under a rent control act. Actual rent
this is actually paid by tenant minus cost of providing facilities. So facilities are lift facility, water pump facility, vehicle parking facility, and gardener if provided by the owner. Determination of expected rent. Now first, determination of expected rent. So how to determine the expected rent? तो expected rent कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर ये दो बातें याद रखना है, ए और बी में मैंने दी हैं. वेयर स्टैंडर्ड रेंट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड, तो पहला जो प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो स्टैंडर्ड रेंट एक्ट के अंदर नहीं आएगी, मीन्स एरिया इज़ नॉट गवर्न अंडर स्टैंडर्ड रेंट एक्ट. और सेकंड एरिया ऐसा होगा वेयर स्टैंडर्ड रेंट एक्ट हैज़ बीन गवर्न. सो वन ऑफ द फॉलोइंग which is greater shall be the expected rent of the building. तो म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे. विच इज ग्रेटर, greater value is considered as a expected rent. Okay, now B, where standard rent has been fixed, ऐसा एरिया जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट एक्ट लागू होता है, मीन्स वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट हमारे लिए क्वेश्चन में अपीयर होगा, हमें दिखाई देगा. वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज लेस shall be the expected rent of the building. Number 1, वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड अंडर ए. अंडर ए मीन्स म्यूनिसिपल और फेयर रेंट को हम जब कंपेयर करेंगे तो हम उसकी ग्रेटर वैल्यू ए कंसीडर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट. तो ए में हमने जो लिया हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट, उसको और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है. द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ ए स्टेट. इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे. विच एवर इज लेस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ए एक्सपेक्टेड रेंट. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द expected rent cannot more than the standard rent but it is less than the standard rent. तो ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बलवीर सिंह वर्सेस MCD 1985 का एक केस था, 152 ITR नंबर 388. इसमें ये बात कही गई थी. सेक्शन 23(1)(b), determination of actual rent. If owner takes burden of providing facilities, lift, water pump, electricity, vehicle parking, gardener, etc. In such case, rent received or receivable minus the cost of providing such facilities will be the actual rent. तो एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? जो हमारे लिए एक्चुअल रिसीव किया, उस रिसीव में से अगर ओनर ने लिफ्ट, वाटर पंप, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स पार्किंग के लिए या गार्डनर के लिए कोई फैसिलिटी दे रखी है, उसका जो चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ से माइनस कर देंगे और जो रेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास वो कहलाएगी हमारी एक्चुअल रेंट. आइए हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. फर्स्ट कंपैरिजन हमने बताया था म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को हम करेंगे और जो भी आएगा वो होगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट. अगर एरिया गवर्न हो रहा है स्टैंडर्ड रेंट के अंदर तो ये एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट में कवर करेंगे. नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. जब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे. विच एवर इज ग्रेटर वैल्यू इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. जब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है तो इसके आधार पर हम कंप्यूटेशन करते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का. तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो हमने
फर्स्ट में निकाल ली, लेस लोकल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, अगर ओनर ने कोई लोकल टैक्स पेड किए हैं उसको माइनस करेंगे, और अनरिलीज रेंट है तो उसको माइनस करेंगे, तब हमारे पास आएगी एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और इस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो 24 के जो डिडक्शंस हैं उनको यहाँ हम माइनस कर देंगे। नंबर 1, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू आएगी इसका 30% हमारे लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही है हर हालत में। नंबर 2, ए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और हाउस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने पर कोई लोन लिया उसका अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, या रिपेयरिंग के चार्जेस हैं या कंस्ट्रक्शन का परचेज करते हुए कोई कंस्ट्रक्शन किया तो उसको हम माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के चार्जेस को। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड टू previous year in which the house is completed is also allowable in 5 equal annual installment। अगर हमने घर बनाने के लिए लोन लिया था और उसको कंप्लीट होने में घर को 2 या 3 साल 4 साल जितना भी या 5 साल तक का समय लगा हुआ है, तो उस ड्यूरेशन में जो हमने इंटरेस्ट दिया हुआ है लोन पर, वो इंटरेस्ट हमारे हाउस प्रॉपर्टी के कंप्लीटेशन के बाद इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में माइनस होगा, और इस तरह से हमारे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये मित्रों, आज आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्लीशन को जाना। हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।